the supplier gets certain benefits and both of them together comply to the contract and keep within the law of the land. Now, the reason I refer to design by contract is the fact that when the methods of object oriented analysis and design were evolving and was getting strong grounds, then it is in the middle of 80s where the design by contract was originally proposed by Burton Mayer, and that has proved to be a very effective approach in solving a wide variety of software design problems, OOAD problems and so on. So, if we just look at it in terms of the terminology or points, that they are between the client and the supplier, there will be mutual obligations and benefit, and in terms of the contract, the supplier must provide a certain product which is the obligation of the supplier to the client, and it will expect to have a benefit from the client, which is the fees that the client pays. Similarly, the client must pay the fees, which is the obligation of the client, and is entitled to get the product, which is the benefit that the supplier provides, and both of them have to go by the obligations of the laws and regulations, which is a part of the contract. So, this is the basic concept that design by contract says. This still is completely in terms of the business domain, but please note that design by contract or DBC as it is commonly called, has found wide applications in software design, in software automated software documentation, particularly in designing inheritance, polymorphism, exceptions and so on. So, we will come to those specifics later on. Let us see how do we apply design by contract more directly into a software design or a class design. We say that please take a look into this diagram. Here we are talking about a software component, which could be thought of as an object. It could also be a simple procedure or a function. So, we say that this component, this object or this particular method of an object is requested with a message with certain input values. So, what will happen if a message arrives to the object for a particular method? Then that method will take those input values and start executing. So, that is what is the software component is trying to do, and then it will produce output. Now, in the process it can also create some side effects, certain other things could happen, like there could be some errors, there could be some exceptions thrown and so on. Now, what we are saying that in a good object based design, the input values must satisfy a set of preconditions. That is, the client, you remember this, our basic model is client server. So, the client who is sending the message to the server to invoke a message must make sure that the message is good, must make sure that a set of preconditions are satisfied by the input values. At the same time, there is a set of post conditions that must be satisfied for the output values. So, in response to the client's message, the output that the server generates or the response message that the server generates must satisfy a set of post conditions. Now, if these two are guaranteed, then certainly the client and the server can work in a lot more safe and segregable manner. So, precondition is to be guaranteed at the entry, and the client must do that, because this is where the message is coming from. So, it is coming from the client. So, it is the obligation of the client to make sure that the precondition is satisfied. Against this obligation, what benefit does the server get? The server gets the benefit that it now knows that the preconditions are satisfied. So, while it is implementing the software component, while it is implementing the method, it does not have to think about any situation which is not protected
by the preconditions. It can limit itself to just the preconditions. Similarly, post condition is guaranteed on exit from the message, on exit from the routine, and it is the obligation of the server to ensure that, and certainly that is a benefit that accrue to the client, because he has been able to invoke the message and get a successful execution. And in this whole process, the client and the server must maintain that the class has certain invariants, certain things should not change, should not be violated in the class, all those must be maintained. So, if you see the style of specifying this design or building up this framework of design by contract, you will immediately be able to relate it to the typical business scenario of obligations and benefits catering to the precondition, post condition and the invariance in the class. Okay. If this is somewhat sounding difficult to you, sounding somewhat vague to you, we will soon come up with an example and explain this design by contract more. But before that, let me introduce what is an interface. We have talked about interfaces even earlier a number of times. So, you understand that an interface basically provides an outside view, that is whatever an interface of a class, and which will by instantiation will become kind of an orifice through which an object can be operated on, is necessarily an outsider's view, what someone from outside that object, someone from outside that class can see. And the abstraction and encapsulation will ensure that all the details, the structural details and the secrets of the behavior will be hidden behind this interface view. Now, interface naturally has to apply to all instances of the object, all instances of the class. So, if I say that a class has certain interface, then every object that I create of that class, every instance that I do, that must satisfy the interface. So, what does the interface has? Certainly, this is what you clearly know, that it must have the methods. The methods must be publicly visible. We have talked about visibility in terms of objects. We will see what does it specifically mean in terms of classes. But in addition to the methods, what is important, and this is the concept we are borrowing from design by contract, is the interface has contracts for methods, has certain precondition, post condition guarantees, certain side effects of whatever that interface will do. So, interface will simply be the methods, publicly visible methods and the contracts of these methods. Let us take an example. Let me consider a stack. I am sure all of you know stack, you know it is a LIFO container, last in first out. So, you can add members to a stack by push, remove members from the stack by pop. If you push, they keep on getting stacked, and when you pop, it is the last pushed element which will get extracted out of the stack. So, the order in which the elements enter and they leave the stack are opposite of each other. Besides, so that gives us the two common methods that a stack has, push and pop. In addition to that, typically we will have another method, another part of the interface which is top, to know what is the current top element of the stack, and we also have a method empty to check if the stack at all has anything. So, we understand this. So, given that if we are designing a stack class, we will say our interface, the method part of the interface are these four methods. There must be a way to push, pop, top and empty. There could be several other interface functions, there could be several other methods also, but this is minimum for defining a LIFO, this is minimum for defining a stack. Now, let us look at, for each one of these, let us look at the preconditions and the post conditions and the side effect. So, this is the method part, and what you see in the rest of the table is a contract part. This is a contract part. So,
contract. So, in the contract what we have? In the contract we will need to have preconditions. So, if we look at push, let us say, let me pick up another color. So, if I look at push, then what is the precondition? That is, when this push method will be invoked on the stack, what the stack object, the particular stack object can assume. The stack object would like to assume that the object that you are trying to push, if you are doing a push, then you have some object that you want to push. For example, it could be a stack of integer, then you are trying to push an integer. It could be a stack of strings, then you are trying to push a string. So, of course, the say a stack of integer object, while push is invoked on that, we will expect that you give it always an integer object, you do not give it a string object or an employee object or something like that. So, the fact that the object will have to be valid is a precondition for the push. Now, what is the post condition? What must be satisfied when the output is generated by push or when push message actually completes execution? Naturally, the object that you have given to push, that must exist on the top, otherwise the LIFO will not get realized. So, it is very critical that this post condition be satisfied. What is a side effect? Now, it may or may not have a side effect, but it is possible that whatever way we are internally implementing the stack, we will talk about this more when we come to the implementation part of the class. But whatever way we do that, we need memory to keep the elements. So, if we repeatedly keep on doing push, at some stage we will need more memory and that requirement will come up to the system. So, that is the kind of side effect that we can have. So, if we similarly look at pop, we will need the fact that I can pop an element provided there is some element in the stack. So, the precondition of pop could be thought of as the stack not being empty. Naturally, post condition is top object has been removed and certainly pop may release some of the memory that was used by the last object. Top again will need a precondition that the stack is not empty, only then you can get the topmost element. Certainly, its post condition is it must return the top object, that is what I am trying to find out. And the other post condition is in the effect of doing a top should not change the state of the top stack object. The state of the stack object must remain unchanged. So, there are two post conditions and there may not be any side effect. If you look at empty, we can say that there is no precondition. I can send an empty message to any stack, whatever it is states, and the post condition is the state of the stack does not change, there is no side effect. So, this is the view of the methods and the contract, which together form the interface of the stack class. I would like to warn you, particularly those who have already been writing programs in various OOP languages like C++, Java or Python for that matter, that you would tend to often believe or follow that it is only the methods, only this part is what is the interface. But please understand that if I just know the methods, just know the messages that I can send to the object to invoke these methods, then I will not be able to do the task properly unless I am careful about the precondition which is specifying the properties on the input, the post condition which specifies the properties on the output, and the side effect which can happen during this process. Just to understand that, let us take for the stack itself an alternate interface. In this alternate interface, again the methods are same, I am not changing any of the methods. But what I have changed is I have changed the contract. Now, I say that well, in the contract I do not expect that when pop is invoked, when a message is sent to pop, then the client has guaranteed that the stack is not empty. I might ask for doing a pop or a top on a stack which may not be empty. I will say that there is no precondition.
So, which means that the stack could be empty and I may be asking for a top. So, what will happen? Now, certainly if the stack is not empty, then the top object is removed. So, that is same as what I had. If it is not empty, then some memory may get released, but what if it is empty? Naturally, the output cannot be generated or the output cannot be satisfied because there is no top object. So, what I will do? I will throw an exception. Throwing an exception is, we will explain that more later on, is kind of telling the system, telling the client server system that, well, I was asked to process a message which I was not able to do. So, in turn I send an exception message to some exception or error handler, error controller. So, it will, since in the just consider that in the previous interface the precondition said that stack is not empty. So, it was not necessary to consider a side effect where pop could throw an exception of stack being empty. But here I have changed the precondition and therefore, I have a possibility of a side effect where an exception may be thrown for the stack being empty. Similar thing will happen for top, it could also throw an exception if the stack actually is empty, is when you are trying to invoke the top message for that stack. So, you can see that just messages being the same does not actually give us the same interface, because depending on the contract here and the contract here, the way the programmer has to implement these methods would be way different. We could think of yet another interface. So, in this interface again we have the same set of methods, we have the same kind of preconditions, and what we change is we have added in this interface, we have added a specific side effect for push. Here we said that push may create a side effect that I need memory, push may create a side effect that more memory is needed, push here as well will create a side effect that more memory is required. Now, stack theoretically is unbounded, I can keep on stacking as long as I want, but whatever system I actually use to implement the stack object will finally have a limited memory. So, at some point it will run out of memory, it will become low memory. So, what will happen to that? So, compared to this interface, this particular one, the later one is a more well specified interface, because it takes care of a potential situation that can happen in the system when it actually has very low memory to make a push request, push message actually successful. So, this was this example I am sure have shown you how you really apply the design by contract principles in terms of your interface design, and how really different interfaces having the same set of methods, but having different kinds of contract will impact the whole design process. The next that we would like to draw your attention to is, we mentioned that methods are publicly visible. I would also remind you of the fact that we have repeatedly been saying that we will enforce encapsulation of the objects, and certainly since objects are instances of their classes, the classes must have a mechanism to encapsulate. Encapsulation basically means hiding certain parts of a class or certain parts of the object that will get instantiated from other objects, from instances of other classes. So, we may note that there are typically 4 types of visibility, or you can say that the interface can be classified, divided into 4 different parts. One that is called public. This is an interface which is accessible to all clients, anybody can use that, and typically when we talk about a interface for use, like we were talking about stack, this is based on only the public visibility
because anybody should be able to use the push, pop, top, empty kind of interface. Another is a private one, which is accessible only to the class itself, not to the outsiders, not to anyone else. So, in the stack example, we could have a method which actually checks if the stack has enough memory when push operation is happening. Now, this method will not be exposed to the external clients, because they do not need to be bothered about whether what the stack class or the stack object should do when there is not enough memory to push another element. This is an internal matter of the stack class, it is an internal matter of the stack object. But stack object actually by itself need to know whether there is enough memory available or not. So, I could have a full kind of a method which the stack object will send to itself to invoke and check whether there is enough memory. Such a method would be a private method, because that others should not be able to see this. In between, we will also see that there is a class of visibility factors, where a declaration of a method is accessible only to the class itself or to its subclasses. We will come to more of subclasses. We have talked about subclass in relation to abstraction hierarchy. So, if something is a subclass of another class, then protected visibility is for that subclass. So, if something is protected, then it is accessible to the class, but it is not accessible to the outsiders, but along with the class, the subclasses also can access the protected members. Finally, some of the object systems introduce another few other kinds of visibility, like package is one such visibility, where all classes that belong to the same package, which is kind of saying that if I put the classes together under one folder, package is similar in concept to a folder, that all the classes, but it is not exactly a folder, it is somewhat different. But it says that if we put all of these classes into a single package, then the classes would be able to see each other, the classes would be able to will be visible across each other. So, we say that visibility enforces different grades of encapsulation, from very hard encapsulation of private visibility to somewhat limited encapsulation of protected and package visibility, to complete openness of public visibility into the whole system of objects and classes. Hi everyone, I welcome you all to the live session on React.js full course by IntelliPact. This session is conducted by multiple experts who will be teaching you all about React.js from basic to advanced level. In this session, we have also covered hands-on demo, projects and also interview questions and answers. But before we begin the session, make sure to subscribe to our channel and also hit on the bell icon so that you will never miss an update from us. Begin with introduction to React.js. Then after that, we will explain you about DOM and virtual DOM. Then later on, we will see the difference between class, functions and components. Once we finish that, we will teach you about React hooks and also do a quick hands-on on how to build custom hooks. Post that, we will be learning about React.js Bootstrap. Once we finish that, we will be doing hands-on demo on creating class components and function components. Once we finish all the hands-on demo, we will be telling you the difference between AngularJS and React.js. Post that, we will be learning about how to become React.js developer. Then finally, we will be covering React.js interview questions and answers. So, this is the agenda of the video. This video is going to be very interesting, so stay tuned and watch the video till the end. Now, let's begin the session.
what is React.js. We'll try and demystify what React.js is and why is it important for us to understand what it actually means. Why React.js is so popular is something we'll take a look at afterwards, but firstly we'll have to understand what React.js is all about. So React.js is a UI library. UI stands for user interface. So it's a user interface library that allows developers to build small self-contained UI components, which can be used to build a user interface. So whenever you take a look at a user interface of any application, whether it's a web application, mobile application, desktop application, you will see that it's built using some components. These components are repeated all over the platforms. So or even on an Android mobile, these components may be repeated. So the components could be a button, it could be a text field, an editable text field, a table view, it could be an image carousel in which you can take a look at all the images that are available by swiping on them or clicking on the arrow buttons. It could also be some image gallery and all of that. And many of these components are built by grouping together smaller components. So a good example of this is a form. A form which is used to collect users information is built by grouping smaller components together. Components such as text field, input field, submit button, and labels and things like that. So React.js allows us to write JavaScript code that allows us to build these components. These components can then be arranged in a hierarchy structure in which we define where does a particular component go declaratively, and using that we can build up the entire user interface. The user interface built using React.js is built completely using JavaScript. So we don't have to understand and define how you can use these components. We just need to define what these components look like, what their styles is going to be, and how they are going to interact with the events that the user dispatches. So when the user clicks on a particular component, what should happen and should something happen or not, things like that. So React allows developers to write really declarative code in JavaScript to efficiently assemble together a user interface. So thing is that what React allows us to do is that it allows us to declare our user interface rather than imperatively dispatching commands that lets the browser know how to piece together the user interface. So React allows us to just declare, okay, I need a button, I need inside the button I need some text, and the text should be this, instead of us having to create a button from scratch and then assigning some text to the text field and stuff like that. If you have dealt with the old school DOM manipulation way, which we'll cover in a few moments, is how it works in DOM generally is you have to create these components or elements yourself, then you have to edit their attributes and you have to add the children attributes. Once you've done all of that, you have to assemble them together in a tree-like structure, which is the DOM tree or document object model tree, in which you have all the child components and parent components efficiently rendered together. So you have to create like a form. Inside a form, you have to attach all the text fields and labels. You have to associate labels with the text fields. You have the input fields. You have to associate types with them. So for instance, some input fields can have passwords. Some input fields can have email. Some input fields can have numbers in a particular range, and so on and so forth. So that's how we're supposed to do that. Keeping that in mind, when we declare our code using React.js, it feels like we're writing HTML, but that's not what we're doing, which we'll cover in a later segment. But that was one of the major controversies with React when it released. So if you've seen some code in React, you can see it as being written HTML with CSS and JavaScript, which is not exactly how it's supposed to. So we'll cover that as well. So it allows us to create user interfaces using just JavaScript and writing the user interface code very declaratively. We do have to create the markup for our components so that our components understand what is it we're trying to display, fancying button or something like that. Also, React.js is maintained by Facebook and were released in 2013. So as you can see, React.js has been out for quite a while, and there have been some massive advancements in the development of React. Currently, React.js is in its 16th version and 17th version is being released. React.js is by far one of the most popular user interface libraries. It has overtaken Angular and Vue in popularity and in job requirements as well. React.js is very popular because it's very simple. It's very easy to understand and it's very easy to learn and use as well. Now, when I say easy, I don't necessarily mean simple. There is a sufficient mental model shift that you need to understand.
If you worked with the old school way of creating a DOM elements and then updating those DOM elements and then inserting the data, that is going to be difficult in this scenario. So we'll have to take a look at that. But overall, it works fine. So in conclusion, what React.js is that it's a user interface library that allows us to build user interfaces by declaratively writing JavaScript code. The JavaScript code is maintained by React. So if any changes happen to the thing that we have rendered, all the components, React will take care of assembling those components, re-rendering the changes, and making sure everything is done as efficiently as possible. If React was not there, then we would have to write the code to figure out what are the things that we have to change. And once we do change, then we have to display it to the user, and that's about it. And that's how it's supposed to work. And now let's take a look at what else we have. What is DOM? We've been talking a lot about DOM and how React.js keeps everything in sync with the DOM, but we'll try and understand what DOM actually means. DOM stands for Document Object Model, and it's the tree structure of our HTML components, but we'll try and get a bit deeper into it. So DOM actually stands for Document Object Model. That I think we all knew. It is a tree-like structure that is used to represent the structure of all the elements of an HTML document. So when we create an HTML document with all the markup, the tags, the attributes, and all of that, it creates a tree-like structure in which HTML tag is at the top. Then we have the body tag, which is its child node. Then we have the head tag, which is also the child node of HTML tag, and it has a lot of information about the content of our website, such as the SEO related stuff, the style sheets, and so on. So these are all arranged in a tree structure. Now, why in a tree structure? Because it makes it very easy for us to navigate from the top of our HTML tag to the particular element that we're interested in, and we can manipulate it in Java. We can manipulate it by getting a reference to it. We can manipulate it by, after getting a reference to it, we can manipulate it by changing its attributes, its content, its type. There could be a number of things that we can do. And that allows us to manipulate it on the fly. So when we click a button and we want to make some changes to our page's HTML content, we can do it using manipulating the DOM. So DOM creates a hierarchical structure. As a tree structure is a hierarchical structure that we have parent and child and sibling and grandparent and all that. And in that, what it does is that DOM can be used by programming languages like JavaScript to interact and manipulate. Now, it can be used by JavaScript, but that's not the only language that can use it. For instance, if you're into web scraping, then you can take a look at Python, Beautiful Soup, and they also understand the document object model. And you can just traverse the structure of the tree once you understand the structure. And with that structure, you can pinpoint to the content that you want to manipulate or save, and you can do that. Now, DOM is a standard interface for interacting with web pages using programming or scripting languages. So it's not that DOM is something that people haven't used yet. People use DOM all the time, and it's a standard programming interface. So anyone who interacts with the web page, who tries to get data from a web page, converts the HTML string into the DOM structure and then manipulates it the way they want to. The reason why JavaScript does it is because exactly the kind of thing that it was built to do. JavaScript was created so that it can manipulate and add functionality to web pages. As times grew, though, JavaScript's reach of what it could do became even more, and now JavaScript can do a whole lot more than just manipulate the DOM. But it's still one of its major features and one of the major reasons why we use DOM, right? So now let's take a look at what else we have to do. Now let's take a look at React DOM. We've taken a look at what DOM is, but when we're working with React in the browser, we need to also work with React DOM, which is one of the libraries that React uses underneath the hood. Let's take a look at what it is and why do we need to use it. So React is a user interface library, but it's built with the purpose of building user interfaces. It's not limited to web. It could also be extended to be used on mobile applications or virtual reality applications such as React VR or React Native, not in that order. But you can use React to build applications for the web, for the mobile platform, which could be cross-platform such as Android and iOS. And you can also use it to build applications for virtual reality apps. Now, that being said, how can you build such applications for such different platforms when you have a single library? Well, the answer is that they have separated the essential parts from the variable parts. So when we're using it on the web, that is when we're using it to build the front end of the web application that we are going to be building, then it needs to interact with the DOM. To make that interaction easy and make that integration seamless, we use React DOM. So what React DOM will do, it will take a look at our component tree and it will take care of converting that component tree into DOM elements.
and keep track of managing that component. So we can create the components using React, and then when it comes to integrating our components with the actual web DOM, we can basically just use React DOM and it will take care of it all for us. That's what React DOM actually is. React DOM is nothing more than just a library. Now, it's basically just a package that contains DOM specific methods used by React to enable itself to interact with the DOM. So if you're using React and you want to build applications for the web, then you use React DOM. Other libraries such as React Native and React VR have their own bridging system, so you don't have to worry about that at all. All you have to worry about is how you can build user interfaces using DOM or React DOM in that specific scenario. So all React DOM does is that it bridges the gap between the React user interface library and the web DOM platform. So if you want to build React applications by creating components that can then be translated into DOM elements and managed by React, we use React DOM specifically for that purpose. Now let's take a look at UI without React.js. So when you're building user interface without React.js, what are the kinds of things that you need to tackle? The first thing is decomposition. So we can quite easily build user interfaces without React.js. So if you want to build a user interface without React.js, you can do it. Especially for smaller applications, it's also a recommended way that you go without React.js. But for any reasonably sized application, it involves some really difficult challenges. One of those challenges is decomposition. So when you're using React.js, we can create small isolated individual components which can then be composed together to create the entire user interface. So if you have a user interface that you want to create using React.js, you can do so. But without React.js, creating smaller components, combining which you can create a larger user interface can be really difficult. Whereas with React.js, decomposition is really easy. So that's why React.js is much more preferred over other component libraries. So without React.js, you would need to create the HTML tags, then use the JavaScript to add event handling code and wire everything up. So without React.js, what we do in plain JavaScript is firstly we create the HTML code for our user interface, style it using CSS. Then we get a handle to each of the components that we're interested in, such as if we are interested in knowing when a button is clicked and all of that. We get those user interface elements, and then we add some user interface elements, add some event handling code to it. So if we have a button that we want तेरी बात मेरी बात, जो करे नजरअंदाज उसका करें हिसाबो किताब, हक के साथ आपकी बात। मून न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
किरणदीप होटल पितापुरा आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महेश कुमार जाटव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आगरा, बेटे पंकज कुमार के खिलाफ हाल ही में थाना सैया में मुकदमा दर्ज हुआ। बेटे के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि नाम अरविंद उर्फ छोटू पुत्र पोहप सिंह निवासी जोधपुरा सैया, राम कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी आयला खीरागढ़ आगरा, सुनील सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी पिनाहट, दयाल सिंह पुत्र मटरेलाल निवासी नगला होटिया सैया, विष्णु प्रताप पुत्र वासुदेव सिंह निवासी बसई आयला आदि लोगों द्वारा अपनी बातों में फंसाकर खाते से 10,45,47,076 रुपए खाते से व पंप के रजिस्टर से पैसे वसूले गए, जिनका विवरण बेटे के पास बैंक खाता और पंप रजिस्टर में दर्ज है, जबकि बेटे को मैटर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेन देन किया था वह मेरे बेटे ने किया था और मेरे बेटे को इन सभी लोगों ने मिलकर लूटने का काम किया है। उद्देश्य ये है कि एक 2 दिन से फर्जी खबर जो चलाई जा रही है मीडिया में कि लेन देन के माध्यम से, लेकिन जैसा है कि लगभग 2021 में से मैटर स्टार्ट हुआ था। लोगों से मैं लेता था पैसे ब्याज पे, 2% की ब्याज तय हुई स्टार्टिंग में, 2% की ब्याज पे मैं लेता था। मैं 2-4 दिन बाद वापस कर देता था इन्हें। तो कुछ जैसे 4 महीने 5 महीने चलता रहा। आए हैं 24 लाख रुपए जो कि अकाउंट में, और मैंने इसे अकाउंट में दिए 54 लाख रुपए वापस। फिर तीसरे नंबर पे है सुनील तोमर से, इससे मेरे पास आए 10 लाख रुपए। इसको मैं 42 लाख रुपए वापस कर चुका अकाउंट में। पैसा जा रहा है, ये क्या ब्याज? ये ब्याज है, ये 30% पर डे के हिसाब से इन्होंने ब्याज लगाई है, उसका है ये पैसा जो भी 30% पर 1 लाख रुपए पे 1% डेली के हिसाब से, महीने की 30%। आपने टोटल कितना पैसा लिया इनसे? मैंने लिया इनसे लगभग 4 करोड़ 92 लाख रुपए, और मैं इनको 10 करोड़ 45 लाख रुपए वापस कर चुका हूँ। कहा इनसे कितना पैसा है, तो आज तक कोई भी पैसा बताने के लिए तो राजी नहीं है। तुम्हारा पैसा कितना है, कैसे कैसे दिया। जब मैंने अपने बेटे से पूरी छानबीन कराई तो इनका ये पूरे स्टेटमेंट है, तो हम लोगों को पता चला कि अरविंद ही एक व्यक्ति अकेला ही पूरे पेट्रोल पंप के 4 करोड़ रुपयों को लेकर के बैठा हुआ है। 4 करोड़ 95 लाख रुपए, जिसमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपए ऑन खाते से बैंक के खातों से ले चुका है। 1 करोड़ 44 लाख रुपए अरविंद पेट्रोल पंप के रजिस्टर से नगद कैश ले चुका है। और इसके बाद में राम कुमार 3 करोड़ 57 लाख रुपए ले चुका है, जिसमें 54 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ 2 लाख रुपए कैश ले जा चुका है। अब पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, हमने कंपनी को वापस कर दिया है, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उस जगह पे हम पेट्रोल पंप को चला सके, क्योंकि डर की वजह से भी, और डर के बाद में वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो चलाने नहीं देंगे, वो मार देंगे इससे जान से। एक दिन यह पिनाहट लेकर चले गए थे 6 फरवरी 2024 को, फिर रात बड़ी मुश्किल में उनके चुंगल से छूट करके घर आया। उसके बाद 7 फरवरी को यह कहीं नहीं गया। मैं पुलिस प्रशासन से मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि वे हमारे परिवार की सुरक्षा करें एवं न्याय मिले। 8 फरवरी 2024 को ये बेटा मेरा घर से भाग जाता है। मैं उस दिन इंगलाज से भी आगे एक बहादुरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर था। मेरे परिवार में एक कार्यक्रम था हमारे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, रोटी जैमे में था। तो एक सूचना आती है, छोटा बेटा मेरे फ़ोन करता है कि भाई का पता नहीं चल रहा है, भाई कहीं पे गायब हो गया। तो मैंने कहाँ से हुआ है कि सागन से हुआ है। मैं सीधा सागन जाया, सागन थाने में मैंने तहरीर दी और उस पर गुमशुदगी का मुकदमा हुआ। उसके बाद 23-24 तारीख में ये लौट करके आया किसी तरीके से। उसमें पूरी पुलिस प्रशासन लगा, सीपी साहब ने बहुत मदद की और इसे ढूंढ करके निकाला। तब हमें पता चला कि ये मामला इस पर लेन देन का है, ये कर्ज की वजह से, और ये ब्याज माफिया हैं, सूदखोर हैं। ये लोग इस पर से पेट्रोल पंप को ज़बरदस्ती लिखवाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ से डर की वजह से भाग गया। और इसलिए हमें भी कोई सूचना नहीं दी, कोई बताई नहीं। और आज तक ये 12 लोगों ने, अब वो ज़रूर फ़ोन करते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे बेटे से लेन देन करते हैं। जब तक इस पर था तब तक ऐसे नोच नोच करके, पल पल तिल मार करके इसे खाते रहे। उसके बाद में जब इस पर नहीं था तो ये भाग गया। उसके बाद में आज मेरे ऊपर भी ये दबाव बना रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और राजनीतिक लोग जो मेरे विरोधी हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं इसमें पूरी तरीके से, कि महेश की कैसे छवि धूमिल की जाए और किस तरीके से इसे बर्बाद किया जाए। ये पूरा प्रकरण चल रहा है। मैंने सीपी साहब को
29/6/2024 को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया इन सभी लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये मेरे सामने जब पंचायत हुई ऑफिस पे आए तो उस समय भी मुझे धमकी दी कि इसे हम उठा के ले जाएंगे, चाहे जान से मार देंगे, नहीं तो हम इस पर पेट्रोल को लिखवा लेंगे, हम पैसा पटा करके रहेंगे। मैंने जो मेरे बेटे से अधिक रुपया इन लोगों ने अधिक ब्याज बात करके जो लिया है वह पैसा भी वापस हो। हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट्स बैंक के खाते से या पेट्रोल पंप से रोज बिक्री के रजिस्टर से जो सेल का रजिस्टर है मैनेजर द्वारा बनाया गया है, उसके माध्यम से यह पेज इन पर पहुंचे हैं। यह मेरा कहना है कि सभी पत्रकार बंधुओं से लोगों। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल नेहरू एनक्लेव आगरा पर सीबीएसई बास्केटबॉल नेशनल 2024-25 के तीसरे दिन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथि ममता टपलू शाम भोजवानी समाजवादी पार्टी, अंजू डैनियल डायरेक्टर सेंट मार्क्स स्कूल, कृष्णा शाक्या डायरेक्टर एंजल स्कूल उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी टीम भावना तथा विद्यालय के प्रबंधक विनोद बंसल, प्रधानाचार्य ममता दुबे, विशाल बंसल, मोहित बंसल, एचओडी स्पोर्ट्स राजेश शर्मा ने सभी टीमों, उनके कोच व रेफरी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि जागृत करना व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है और वो भी 14 से है और लगभग मैं आपको बता दूं कि 75 टीमें ओवरऑल आई हैं, जिसमें कि कम से कम 8 से 9 टीमें जो है वो गल्फ कंट्रीज़ की हैं और बाकी जो टीमें हैं वो अपने इंडिया से हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें सीबीएसई ने हमें एक मौका दिया है, क्योंकि सारी चीज़ों को देखते हुए वो मौका हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये चौथी बार मौका हमें सीबीएसई ने दिया है, क्योंकि इससे पहले 2006 में हुआ हमारा नेशनल टूर्नामेंट, फिर 2013 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2024 में हुआ। तो मैं सभी आए हुए खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ जॉन मिल्टन परिवार की ओर से, क्योंकि बहुत खुशी होती है और हर तरह की जो उनकी समस्या हैं या उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से हम सोचते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट। किरणदीप होटल प्रतापपुरा आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महेश कुमार जाटव जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आगरा बेटे पंकज कुमार के खिलाफ हाल ही में थाना सैया में मुकदमा दर्ज हुआ। बेटे के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि नाम अरविंद उर्फ छोटू पुत्र पोहप सिंह निवासी जोधपुरा सैया, राम कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी आयला खीरागढ़ आगरा, सुनील सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी पिनाहट, दयाल सिंह पुत्र मटरेलाल निवासी नगला होतिया सैया, विष्णु प्रताप पुत्र वासुदेव सिंह निवासी बसई आयला आदि लोगों द्वारा अपनी बातों में फंसाकर खाते से 10,45,47,076 रुपए खाते से व पंप के रजिस्टर से पैसे वसूले गए, जिनका विवरण बेटे के पास बैंक खाता और पंप रजिस्टर में दर्ज है। जबकि बेटे को मैटर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेन देन किया था वह मेरे बेटे ने किया था और मेरे बेटे को इन सभी लोगों ने मिलकर लूटने का काम किया है। उद्देश्य ये है कि 2 दिन से फर्जी खबर जो चलाई जा रही है मीडिया में कि लेन देन के माध्यम से, लेकिन जैसा है कि लगभग 2021 में से मैटर स्टार्ट हुआ था। इन लोगों से मैं लेता था पैसे ब्याज पे, 2% की ब्याज तय हुई स्टार्टिंग में, 2% की ब्याज पे मैं लेता था, मैं 2-4 दिन बाद वापस कर देता था इन्हें। तो कुछ जैसे 4 महीने 5 महीने चलता रहा। आए हैं 24 लाख रुपए जो के अकाउंट में, और मैंने इसे अकाउंट में दिए 54 लाख रुपए वापस। फिर तीसरे नंबर पे है सुनील तोमर से इससे मेरे पास आए 10 लाख रुपए, इसको मैं 42 लाख रुपए वापस कर चुका अकाउंट में। पैसा जा रहा है, ये क्या ब्याज? ये ब्याज है, ये 30% पर डे के हिसाब से इन्होंने ब्याज लगाया, उसका है ये पैसा जो भी 30% और 1 लाख रुपए पे 1% डेली के हिसाब से, महीने की 30%। आपने टोटल कितना पैसा लिया इनसे? मैंने लिया इनसे लगभग 4 करोड़ 92 लाख रुपए और मैं इनको 10 करोड़ 45 लाख रुपए वापस कर चुका हूँ। कहा इनसे कितना पैसा है, तो आज तक कोई भी पैसा बताने के लिए राजी नहीं है। तुम्हारा पैसा कितना है, कैसे कैसे दिया। जब मैंने अपने बेटे से जब पूरी छानबीन कराई तो इनका ये पूरे स्टेटमेंट है, तो हम लोगों को पता चला कि अरविंद ही एक व्यक्ति अकेला ही पूरे पेट्रोल पंप के 4 करोड़ रुपयों को लेकर के बैठा हुआ है। 4 करोड़ 95 लाख रुपए
जिसमें से 3,50,00,000 रुपए ऑन खाते से बैंक के खातों से ले चुका है। 1,44,00,000 रुपए अरविंद पेट्रोल के रजिस्टर से नगद कैश ले चुका है। और इसके बाद में राम कुमार 3,57,00,000 रुपए ले चुका है, जिसमें 54 लाख रुपए कैश और 2,02,00,000 रुपए कैश ले जा चुका है। अब पेट्रोल बंद कर दिया गया, हमने कंपनी को वापस कर दिया है, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उस जगह पे हम पेट्रोल को चला सके, क्योंकि डर की वजह से भी, और डर के बाद में वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो चलाने नहीं देंगे, वो मार देंगे इससे जान से। एक दिन यह पिनाहट लेकर चले गए थे 6 फरवरी 2024 को। फिर रात बड़ी मुश्किल में उनके चुंगल से छूट करके घर आया। उसके बाद 7 फरवरी को यह कहीं नहीं गया। मैं पुलिस प्रशासन से मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि वे हमारे परिवार की सुरक्षा करें एवं न्याय मिले। 8 फरवरी 2024 को ये बेटा मेरा घर से भाग जाता है। मैं उस दिन इंगलास से भी आगे एक बहादुरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर था। मेरे परिवार में एक कार्यक्रम था हमारे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, रोटी जयमे में था। तो एक सूचना आती है, छोटा बेटा मेरे फ़ोन करता है कि भाई का पता नहीं चल रहा है, भाई कहीं पे गायब हो गया। तो मैंने कहाँ से हुआ है कि सागन से हुआ है। मैं सीधा सागन जाया, सागन थाने में मैंने तहरीर दी और उस पर गुमशुदगी का मुकदमा हुआ। उसके बाद 23-24 तारीख में ये लौट करके आया किसी तरीके से। उसमें पूरी पुलिस प्रशासन लगा, सीपी साहब ने बहुत मदद की और इसे ढूंढ करके निकाला। तब हमें पता चला कि ये मामला इस पर लेन देन का है, ये कर्ज की वजह से, और ये ब्याज माफिया हैं, सूदखोर हैं। ये लोग इस पर से पेट्रोल पंप को ज़बरदस्ती लिखवाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ से डर की वजह से भाग गया। और इसने हमें भी कोई सूचना नहीं दी, कोई बताई नहीं। और आज तक ये 12 लोगों ने, अब वो ज़रूर फ़ोन करते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे बेटे से लेन देन करते हैं। जब तक इस पर था तब तक ऐसे नोच नोच करके, पल पल तिल मार करके इसे खाते रहे। उसके बाद में जब इस पर नहीं था तो ये भाग गया। उसके बाद में आज मेरे ऊपर भी ये दबाव बना रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और राजनीतिक लोग जो मेरे विरोधी हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं इसमें पूरी तरीके से, कि महेश की कैसे छवि धूमिल की जाए और किस तरीके से इसे बर्बाद किया जाए। ये पूरा प्रकरण चल रहा है। मैंने सीपी साहब को 29/6/2024 को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया इन सभी लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये मेरे सामने जब पंचायत हुई, ऑफिस पे आए तो उस समय भी मुझे धमकी दी कि इसे हम उठा के ले जाएंगे, चाहे जान से मार देंगे, नहीं तो हम इस पर पेट्रोल को लिखवा लेंगे, हम पैसा पटा करके रहेंगे। मैंने जो मेरे बेटे से अधिक रुपया इन लोगों ने अधिक ब्याज बात करके जो लिया है वह पैसा भी वापस हो। हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट्स बैंक के खाते से या पेट्रोल पंप से रोज बिक्री के रजिस्टर से जो सेल का रजिस्टर है मैनेजर द्वारा बनाया गया है, उसके माध्यम से यह पेज इन पर पहुंचे हैं। यह मेरा कहना है कि सभी पत्रकार बंधुओं से लोगों। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में बुधवार को गांव आसुआ में संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। युवक की हत्या से गांव में अफरा तफरी मच गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं प्रताप सिंह, बनी सिंह, उत्तम सिंह पुत्रगण दीनानाथ निवासी असुआ 3 भाई हैं। पिता की मौत के बाद संपत्ति रामदेवी के नाम हो गई। तीनों भाई अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। सभी भाइयों के मध्य संपत्ति बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार को दोपहर में खेत में बंटवारा को लेकर उत्तम सिंह और बनी सिंह के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होते ही बनी सिंह की पत्नी और बेटा उत्तम सिंह पर डंडा लेकर दौड़ पड़े। तीनों ने मिलकर उत्तम सिंह की पीट कर हत्या कर दी। युवक की हत्या से गांव में अफरा तफरी मच गई। आरोपी भाई अपने भाई की हत्या के बाद अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गया। प्रियांशी, क्या हुआ है यहाँ, क्या मामला? कोई बात नहीं थी, वो खेत की बात थी। वो मेड वगैरह उन लोगों ने क्या कहते फूल वगैरह कर दी होगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो वही चाचा ने बोला था कर दी, और सही तो कर सकते हो, पर यही बात थी। तो उनकी बहू आई अंदर से और उनने उनके हाथ पकड़े, उनने पैर पकड़े, उनकी लड़की ने ईंट मार दी उनके। तो फिर क्या हुआ? यहाँ से फिरोयाबाद ले गए? कहाँ ले गए? फिरोयाबाद ले गए, वो शुकाबाद ले गए, तो शुकाबाद मना कर दिया, फिरोयाबाद ले गए थे ट्रॉमा सेंटर में। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस बार में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि झगड़े के दौरान मृतक के सिर पर ईंट मार दी। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मून न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।
ग्राम विकास विभाग के सचिव सुखलाल भारती ने फिरोजाबाद पहुंचकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें सर्वप्रथम अपने भ्रमण के दौरान वह राज्य शौचालय चिकित्सा महाविद्यालय के 200 संयम भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने लिफ्ट में जंग लगी देखकर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि लिफ्ट को संचालित करना अति आवश्यक है, जिससे मरीज को लाने ले जाने में सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अग्निशमन यंत्रों को सुचारू रूप से लगे न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अग्निशमन यंत्रों को तत्काल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि टाइल्स, सिंक जैसी अन्य चीजें जो खराब हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बदलना सुनिश्चित करें। का हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे और कुछ बजट की कमी है, उसकी वजह से अभी पूरी तरह से फंक्शन नहीं हुआ है और फंक्शन करने के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी लिफ्ट हो जाए और फायर फाइटिंग का जो है बात काम पूरा हो जाए, तो उसके लिए टैंक की खुदाई हो रही है और लिफ्ट एक तो फंक्शनल हालत में है, लेकिन अभी 2 लिफ्ट की जरूरत है, तो ये लग जाए तो ये हॉस्पिटल चल जाएगा। और जो जिस कारण से ये अभी रुका हुआ है, फंक्शन नहीं है, उसके लिए डिमांड जो है डीएम साहब ने भेज रखी है, तो हम लोग शासन स्तर इसको परसू करके कोशिश करेंगे इसका बजट मिल जाए ताकि ये फंक्शन हो जाए। कब तक चालू किया जाए? अब बजट मिल जाए इसका, जब बजट इसमें कुछ खामियां भी पाई गई हैं जैसे आपकी देखिए। देखिए छोटी मोटी कमियाँ तो हर जगह कई साल पहले से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो कमियाँ पाई गई है उनको संबंधित अधिकारियों को मैंने बता दिया है। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर जताई नाराजगी, जल्द सुधार के दिए दिशा निर्देश। न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। शिकाबाद के नेहा अतिथि ग्राम में 1 दिवसीय फैमिली ग्लैमर शॉपिंग इवेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन फैमिली और फैशन प्रेमियों के लिए एक विशेष अवसर साबित हुआ, जहां विभिन्न प्रकार के फैशनेबल वस्त्र, आभूषण और घर सजाने के सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। इस इवेंट में स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। फैमिली ग्लैमर शॉपिंग इवेंट का उद्घाटन प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर के पुत्र सुमित प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। फैमिली ग्लैमर शॉपिंग में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वस्त्रों और ट्रेडिंग आभूषणों की रेंज उपलब्ध है। इसी के साथ घरेलू उपयोग की चीजें भी आकर्षण का केंद्र रही। स्थानीय दुकानदारों ने भी अपने नए कलेक्शन का प्रदर्शन किया, जिससे ग्राहकों को नए फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिली। आज नगर शिकाबाद में एक फ्रेंडली ग्लैमर जिसमें फूड एंड शॉपिंग कार्निवल का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं इसके ऑर्गेनाइजर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कि इतना महत्वपूर्ण उद्देश्य इनका है, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है महिला सशक्तिकरण, उसी उद्देश्य को आप लोग पूरा कर रहे हैं। जितने भी आप लोगों ने स्टॉल देखे होंगे सारे महिलाएं उसमें भागीदार हैं। जो उनके प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। जो मोदी जी का सपना है देश को विकसित भारत बनाने में, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य के साथ वो ये जो संस्था है सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आयोजन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे सभी उम्र के लोग इस इवेंट का भरपूर आनंद उठा सके। और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मैंने और मेरी पार्टनर ज्योत्सना जैन ने यहाँ पर आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जो कि नेहे आतिथ्य स्टेशन रोड शिकाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं जो घर से बिजनेस करती हैं उनकी रचनात्मक कौशल, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज हमने ये आयोजन किया है। यहाँ पर देखिए तरह तरह की स्टॉल्स आ रही हुई है, जहाँ पर उन्होंने हाथ से बनाए हुए सामान, दिवाली से रिलेटेड आइटम है, हाथ से बने हुए दिए हैं, कैंडल्स है या पोशाक है, ये सारी चीजें वो यहाँ है, जिससे उनका यहाँ पे उनको आज तैयार मार्केट मिलेगा, उनको उनकी रचनात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए आज इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि महिलाओं के सपनों को साकार करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि आज हमारा शिकाबाद जो है एक छोटी जगह है। हम यहाँ पर भी इतनी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं जो बिल्कुल आगरा लेवल और दिल्ली लेवल की हो। फ्रेंडली ग्लैमर एग्जीबिशन की आयोजक हूँ, मेरी एक पार्टनर है रश्मि सिंगल। हम दोनों मिलकर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल, करवा चौथ, दिवाली पर हर साल। ये तीसरी बार है जो हमने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आता रहा है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ फिरोजाबाद, आगरा, हमारे लोकल के भी कई वेंडर्स आए हुए हैं, बनारस, बरेली, हाथरस एंड दिल्ली से भी कई लोग आए हुए हैं और देखने को मिल रहा है रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा जा रहा है और लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहाँ हमारे शिकाबाद में इस तरह का कोई आयोजन होता नहीं है।
तो लोगों में काफी क्यूरियोसिटी भी है इसके लिए। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के इवेंट में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और लोगों को अपने परिवार के साथ शॉपिंग का अलग अनुभव होता है। नई न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। इंडियन ऑयल तो वैसे ही पैन इंडिया स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रही है और इसी तरीके से लोकल लेवल पे जैसे आगरा में हमारे मून ओलंपिक्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। अभी तो 18वां साल हो गया है, लेकिन मैं खुद इनसे पिछले 2-3 साल से जुड़ा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, ख़ासकर राहुल पालीवाल जी हैं और उनके टीम मेंबर्स हैं, इतने उनमें जोश है कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा सुविधा देना है, उसको उसके जो उसमें गुण हैं खेल के प्रति उसको उभारना है और नेशनल लेवल पर उसको ले जाना है। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि 2-3 बच्चे को तो मैं जान रहा हूँ कि वो नेशनल लेवल पर पहुँचे हैं, जो कि आगरा में है। और उनका श्रेय मैं पूरा मून ओलंपिक्स को देना चाहूँगा कि वो एवरी ईयर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इन लोग की जो इतनी मेहनत हुई है उसकी वजह से तो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना योगदान देना शुरू कर दिए। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये बढ़ता रहे। माई ऑल द बेस्ट फॉर मून ओलंपिक्स। इस बार 2 गेम्स बढ़ा दिए गए हैं, तो 22 गेम्स का ये खेल महोत्सव आगरा में होने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी बच्चों से, कर लो तैयारी। आ रहे हैं इस बार भव्य आयोजन लेके आप लोगों के सामने। आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ हम लोग ये आयोजन समिति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई हैं। तो बहुत भव्य रूप ले रहा है। 15,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन होने वाला है और इस आयोजन में हमें ये लगता है कि कोशिश करेंगे कि बड़े प्लेयर्स को भी लेके आएँ ताकि बच्चे इंस्पायर हों यहाँ पे आगरा में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस आयोजन के लिए, शहर के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है कि इतना खूबसूरत आयोजन होता है। और ये 18वां आयोजन है, यानी कि पहले पायदान से लेकर 18वें पायदान तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, दुश्वारियाँ आई होंगी, लेकिन जीत एक कदम आगे बढ़ती गई।
तो ढेरों शुभकामनाएं हैं मून ओलंपिक के लिए और पूरी टीम के लिए, आयोजक टीम के लिए, क्योंकि पूरी मेहनत करते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आज की डेट में ये कहा जाता है। तो बच्चों के लिए इंतज़ार रहता है मून ओलंपिक के लिए। मैं कार्यक्रम के दौरान अन्य जिलों में जाती हूँ और मुझे जब वहाँ के लोग कहते हैं कि मैडम आपके शहर में मून ओलंपिक होता है, तो खुद भी गर्व होता है कि बच्चे कितना इंतज़ार कर रहे हैं मून ओलंपिक के लिए। तो ऐसे ही आयोजन है। मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ पूरे आयोजन। वास्तव में ये आगरा के लिए काफ़ी गर्व की बात है। जो भी एक स्टेप लिया इतने सालों के अंदर राहुल जी की प्रेरणा से, इतना बड़ा स्टेप होकर के, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर पूरा एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई मैं अगर यूपी बोर्ड से हूँ, मेरे में हीन भावना है कि साहब मैं उनके संग आज कॉम्पीट कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग हमसे आगे निकलते हैं। एक दूसरे से काफ़ी सीखने को मिलता है हमें इससे। ना केवल बच्चों को मिलता है बल्कि स्कूल भी एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों ही टू वे लर्निंग प्रोसेस रहती है ये वाली। मैं 18वें मून ओलंपिक के उपलक्ष्य में मून ओलंपिक जो समिति है इसको बधाई देता हूं। और ये एक बहुत बड़ा खेलों का महाकुंभ है जो लगातार 18वीं बार आगरा में आयोजित किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भाग लेंगे। और सभी विजेता जो भी होंगे उनको पुनः अग्रिम बधाई। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका भाग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो बच्चा जीतेगा और या फिर वो सीखेगा। तो जो सीख है वो घर बैठे नहीं मिल सकती, वो आपको खेल के मैदान में मिलेगी। और इसीलिए इसका महत्व बढ़ता है। और ये जो आयोजन है ये बहुत बृहद आयोजन है। इसमें आप सभी से मैं अपील करूँगा कि जो लोग इससे देखें, लोग जुड़ें और मैच देखने आएँ, अपने बच्चों का उत्साह करें। इसी माध्यम से हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जो मून ओलंपिक्स का जो आयोजन हो रहा है ये बार हम लोग होस्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको एक रूपरेखा देना, इसको एक स्ट्रक्चर देना। तो ये स्ट्रक्चर देना हम लोग मई महीने से शुरू कर दिया था। तो मई में हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग्स की। उसके बाद आगे बढ़ के इसके फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, इसके न्यू नॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये सब हम लोग देखते रहे। और अभी ऐसा है कि आज तो आप लोगों को जो मून ओलंपिक्स का जो एंट्री फॉर्म्स वगैरह मिल चुका है। और इसके आगे हम लोग बस अभी वेट कर रहे हैं कर्टन रेजर प्रोग्राम के लिए, जो हम लोग होस्ट कर रहे हैं डीपीएस ताज सिटी में। सो डीपीएस ताज सिटी में एक बार कर्टन रेजर प्रोग्राम शुरू हो जाने के बाद उसके बाद तो नवंबर में ऑलरेडी ये किया ही हुआ है कि हम लोग इसको होस्ट करेंगे स्टेडियम में। तो बस इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल पालीवाल जी का सहयोग रहा हम लोगों को। जब भी हमने उनको बुलाया, जब भी हमने उनसे बात की, हमें ज़रूरत पड़ी कि सर हमें कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए, तो सर हमारे साथ थे। तो पालीवाल जी और दीक्षित जी कभी भी साथ में आते थे, एक साथ बैठते थे, हम लोग डिज़ाइन करते थे। तो उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बस अभी यही आशा करते हैं कि आगे ये प्रोग्राम सफल बने। और स्पेशली डीपीएस स्कूल मैनेजमेंट जो हमारे सुनील अग्रवाल जी हैं वो खुद स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मेरे को जो लग रहा है कि जो भी हम लोग आगे करेंगे इसमें कोई कमी आने नहीं देंगे, बस ये तो ज़रूर।
देखिए 18वां मून ओलंपिक का है ये, कर्टन रेजर था आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस बीपीएस ताज सिटी ने दी और बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इस बार का जो विशेष बात यह है कि 22 जो गेम्स हैं उसमें कुछ नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसका अभी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, बट ये पॉपुलर हो जाएंगे आगे चल के गेम्स। तो यही प्रयास है मून का कि वो मैक्सिमम गेम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और बच्चों को ये मौका मिल रहा है कि वो अच्छी तरह परफॉर्म करें और हमारे आगरे का, हमारे उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। थैंक शान मेरी अगरा है, जान मेरी अगरा, जब आ जाए ये खेलने पे तो करे नाम अगरा। खेलों का शहर अगरा, अलबेलों का अगरा, मून ओलंपिक के लगने वाले मेलों का अगरा, मेलों का अगरा। आओ यहाँ मन से खेले, किसमें दम कितना है, जिसे यहाँ जीत मिलेगी उसी को बढ़ना है। हमें जग में छाना है, जग में छाना है। कि अब आगरा की बारी है, जीतने की तैयारी है। मून ओलंपिक खेलेंगे, जीतना जिद ही हमारी है। कि अब आगरा की बारी है, जीतने की तैयारी है। मून ओलंपिक खेलेंगे, जीतना जिद ही हमारी है। शानदार बड़ा आगरा, जानदार बड़ा आगरा, जोशीले खिलाड़ी आगरा के दमदार बड़ा आगरा। गेमों का शहर आगरा, अलबेलों का आगरा, मून ओलंपिक को खेलने वाली टीमों का आगरा, टीमों का आगरा। टीम से बड़ा नहीं कुछ, टीम ही जीतेंगी, जीत के चमकेंगी, हार से सीखेंगी। हम हैं सुपर, हम बेस्ट हैं, ये सबको बताना है, सबको बताना है। कि अब आगरा की बारी है, जीतने की तैयारी है। मून ओलंपिक खेलेंगे, जीतना जिद ही हमारी है। कि अब आगरा की बारी है, जीतने की तैयारी है। मून ओलंपिक खेलेंगे, जीतना जिद ही हमारी है। जिद ही हमारी है। तेरी बात मेरी बात, जो करे नजरअंदाज उसका करें हिसाबो किताब। हक के साथ आपकी बात, मून न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी बात।
नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं मून न्यूज। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माही इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को बड़े जश्न का माहौल था। मौका था मून स्कूल ओलंपिक महाकुंभ की अलग जगाने वाली मशाल और उसके शुभंकर चंपक के स्कूल पहुंचने का। अपने बीच मून स्कूल ओलंपिक के शुभंकर चंपक को देख स्कूली बच्चे खुशी से झूम उठे और बच्चों में चंपक के साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने की होड़ मच गई। चंपक ने भी बच्चों को निराश नहीं किया। बच्चों के बीच जाकर चंपक ने हाथ मिलाया और मून स्कूल ओलंपिक में भाग लेने का निमंत्रण दिया। 18वें मून स्कूल ओलंपिक के होस्ट डीपीएस दास सिटी व आयोजन समिति के मुख्य संयोजक हरि सिंह के मार्गदर्शन में विद्यालयों में मून स्कूल ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए मशाल अपने शुभंकर चंपक के साथ विद्यालयों में पहुंच रही है। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में सजे भव्य पंडाल में मून टीवी के डायरेक्टर राजीव दीक्षित और न्यूज एडिटर मनीष तिवारी ने माही इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन संजय अग्रवाल और मैनेजिंग ट्रस्टी मंजरी अग्रवाल को रिले टॉर्च सौंपी तो पूरा विद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चों ने रिले टॉर्च हाथ में लेकर आमंत्रण स्वीकार कर अच्छे खेल की भावना का संदेश दिया और मून स्कूल ओलंपिक टीम का आभार जताया। माही इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन संजय अग्रवाल और मैनेजिंग ट्रस्टी मंजरी अग्रवाल ने भी खुशी जताई और 18वीं मून स्कूल ओलंपिक महाकुंभ में अधिक से अधिक मेडल जीतने का वादा करते हुए मून स्कूल ओलंपिक टीम को इस सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। स्कूल ओलंपिक की टीम हमारे यहाँ आई मसाल लेके और बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा कार्य मून ओलंपिक पिछले 17 सालों से कर रहा है। सारे 300 स्कूल और 15,000 बच्चों का कोई एक टूर्नामेंट कराना आसान बात नहीं है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है स्कूल के बच्चों को। हमने पहले तो भाग नहीं लिया है पर इस बार डेफिनेटली हम मून ओलंपिक में भाग लेंगे। क्या लगता है सर, इस बार अब पहली बार में मेडल जीत के आएंगे? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य रहता है मेडल नहीं, एक अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फेयर लर्निंग होनी चाहिए, हम एक दूसरे से सीखें, खेल की भावना होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि कम से कम इस बहाने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सब जगह के बच्चे तैयार होंगे। तो क्या लगता है हम इस बार अधिक मेडल जीत के आएंगे? पहली बार भाग लेने जा रहे हैं हम, पहली बार माही के यहाँ तो पहली बार भाग लेंगे बच्चे और मैं भी है ना अच्छा ही करके आएंगे, जीत कर आएंगे। इस बार ओलंपिक की ये जो टॉर्च हमारे यहाँ आई है इससे बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। पहली बार ये हमारे यहाँ टॉर्च आई है और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। आगे वो हम यहाँ से 4-5 टीमें इस साल मून ओलंपिक में ज़रूर भेजेंगे जिससे बच्चों को भी एक एक्सपोजर मिलेगा और आगे कंपटीशन का उनकी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप हो। ये जो काम मैं आखिरी में ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो काम मून वाले करवा रहे हैं मून ओलंपिक्स का, ये बहुत ही सराहनीय काम है जिससे पूरे आगरा शहर में एक स्पोर्ट्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर होस्टिंग दिस और बिल्कुल बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, दे वर हैप्पी। जब हमारा स्पोर्ट्स कैप्टन हेड बॉय व्हेन दे वर होल्डिंग द टॉर्च, उनके लिए ये एक बहुत ही रोमांचकारी या ये कहिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट बन गया आज। जी। तो लगता है कि हम अधिक से अधिक मेडल जीत के आएंगे, बच्चों की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं और डेफिनेटली हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आगे बहुत ज़्यादा अच्छे मेडल्स जीतेंगे। इस अवसर पर एक्टिविटी इंचार्ज शिल्पी मुदकर, अंजलि मिश्रा और स्कूली बच्चे भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी 18वें मून स्कूल ओलंपिक में प्रतिभाग कर मेडल जीतने की बात कही। All the students are very excited, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, they are enjoying and there are various games like कबड्डी है यहाँ पर, फुटबॉल है, खो खो है, वॉलीबॉल है, ये बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगता है अधिक से अधिक मेडल जीत के आएंगे बच्चे? हाँ, उम्मीद है, बच्चों ने तैयारी भरपूर की है तो उम्मीद है कि वो जीत के ही आए। अगर ना भी जीते तब भी उनके लिए कुछ ना कुछ उनको सीखने को तो मिलेगा ही। बच्चों में बहुत रुझान है और इस बार वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है खेलों में भाग लेने के लिए। किस किस गेमों की मैम अभी तक तैयारी चल रही है, क्या जो बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं? कबड्डी है, खो खो है, हैंडबॉल है, मतलब बच्चे जो जिसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं उनमें वो भाग ले रहे हैं। लगता है कि पहली बार में अधिक मेडल जीत के आएंगे इस बार? हाँ सर, सभी बच्चे। सर, we are very glad to take participate in the Multistream and sir,
our preparation is very well for the competitive persons and the competitive teams, as we are very glad to that for that के मतलब सर हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपके मून स्ट्रीम में हमें मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला सर, और एंड सर वी आर ऑल्सो अप्रिशिएबल फॉर दिस कि हमें मौका मिला आपकी टीम में पार्टिसिपेट करने का। सर आवर प्रिपरेशन इज़ वेरी वेल, वी आर हैप्पी दैट मून ओलंपिक्स इज़ हियर। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा था टीवी वगैरह पे, आज हमारे स्कूल में हो रहा है तो हमको बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल हैं कि मून ओलंपिक्स हमारे स्कूल में हुआ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हमारे स्कूल में। स्कूल प्रशासन भी आपका पूरा सहयोग कर रहा है, लगता है अधिक से अधिक मेडल जीत के आएंगे आप? यस सर। किस स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग ज़्यादातर? सर सारे स्पोर्ट्स की इक्वल प्रिपरेशन हो रही है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं इसमें सबकी इक्वल प्रिपरेशन की जा रही है। इस अवसर पर आगरा ओलंपिक संघ के सचिव राहुल पालीवाल, मून टीवी के निदेशक राजीव दीक्षित, मून टीवी के न्यूज एडिटर मनीष तिवारी, कर्नल ब्राइटन पब्लिक स्कूल के सोमेश दुबे व आर्मी पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र योद्धा एकेडमी के डायरेक्टर मनोज शर्मा, अजय यादव, राकेश शुक्ला, शिक्षक महेंद्र सिंह और कनक, छात्र छात्राएं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट। संजय पैलेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में सिकंदरा क्षेत्र में क्रॉस रोड मॉल के सामने पड़ी बहुमूल्य जमीन के मूलभूत स्वामियों ने प्रेस वार्ता कर भूमाफियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। मूल भूस्वामी रामदास ने बताया कि उनकी क्रॉस रोड मॉल के सामने पड़ी कीमती जमीन पर भूमाफियों की नजर पड़ गई है। भूमाफियों द्वारा जमीन के तहसील अभिलेखों से भूमाफिया अवैध कुमार द्वारा छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने परिवारजनों अजय कुमार एवं अन्य 12 बेनामे कर दिए गए हैं। भूस्वामी अनंत कुमार ने कहा कि प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में सुशील गोयल के बेनामे को फर्जी करारते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी एवं उस आधार पर किए 12 बेनामे निराधार हैं, बल्कि भूमाफिया अवधेश कुमार व अजय कुमार व 12 अन्य साथियों द्वारा प्रशासन को गुमराह कर जमीन के मूल मालिकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा उनको जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही। रामदास ने बताया कि भूमाफियों द्वारा उनको व उनके परिवारों को निरंतर धमकी दी जा रही है कि अगर जमीन खाली नहीं की तो तुमको फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भिजवा देंगे। ये हमने डॉक्टर कृष्णकुमार सिंघल जी, डॉक्टर राजवाला सिंघल जो MBBS MD है, और हमने भारती गुप्ता, उनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने जमीन ली है और उसमें हमें कुछ भूमाफिया जो भूमाफिया घोषित भी हैं और उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पे आकर हमारी जमीन में माँ हमारे भाई वहाँ रह रही हैं तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने देंगे, जमीन से निकालेंगे और तुम्हारे पति को और उनको हम जेल भिजवा के मानेंगे। किस तरह से उन्होंने ये सब ड्रामा रचा? भारती गुप्ता के पिताजी बालेश्वर नाथ ने सन 2000 में एक खसरा संख्या 1096 जमीन सुशील कुमार गोयल को बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेज नंबर 2 पे काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो जमीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत माननीय DM साहब के पास की। DM साहब ने ADM एक टीम गठित की जिसमें ADM FR और महानिरीक्षक उपनिबंधक थे, जिसमें 4 रजिस्ट्रारों की टीम बनी। उन्होंने जब जांच कर पाया कि उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 अंकित की है। इसकी FIR उपनिबंधक प्रथम नीतू गोला जी द्वारा थाना सागाजी के अंदर की गई, मुकदमा संख्या 368 2022 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के गोवर्धन मैदान में खेली जा रही मून क्रिकेट प्रीमियर लीग में बुधवार को टीसा और सेंट एंड्रयूज पीली पोखर के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीसा 20 ओवर के मैच में 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। टीम की ओर से रोहित भल्ला ने 11 चौकों की मदद से 57 गेंद में 71 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। कप्तान आर्य ने 21 गेंद में 33 रन बनाए। इसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। सेंट एंड्रयूज के गेंदबाज यशराज शर्मा और उदय प्रताप ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट एंड्रयूज की टीम 18.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 133 रन बनाकर 28 रनों से मैच हार गई। टीम की ओर से निशु निषाद ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए। इनमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उदय प्रताप ने 3 चौकों की मदद से 26 गेंद में 27 रनों की पारी खेली। टीसा के गेंदबाज वैभव ने 4 विकेट लिए। चिराग को 3 और ओम को 2 विकेट मिले। एम्पायरिंग दीपक कौशिक और शुभम ने की।
कमेंट्री विश्वास विजय ने की। स्कोरिंग शुभम सिंह रहे। पुरस्कार वितरण टैक्स गुरु दीपक महेश्वरी और मोहनलाल मीणा ने किया। इस अवसर पर दीपक ने कहा कि आगरा की खेल प्रतिभा को निखारने में मून टीवी और अमर उजाला का विशेष योगदान है। मैच तो सही था। शुरुआत में पावर प्ले में लग रहा था कि हाथ से मैच निकल जाएगा, फिर सदा मैच। कितने रन मारे आपने? रन तो बैटिंग ही नहीं आई, क्या रहा था? बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए 3.2 ओवर में। आज जब हम लोग फील्डिंग करने गए थे तब तो ऐसा लग रहा था उनकी बैटिंग देख के कि आज तो पावर प्ले का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर ने कमबैक किया था और स्पिनर्स ने डॉट निकाले थे, उस वजह से हम पे प्रेशर कम हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मून स्कूल क्रिकेट लीग के लिए राजीव दीक्षित जी, मनीष तिवारी जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट इन्होंने सुरेश विभव जी की मेमोरी में किया है, जो कि पहला विभव टूर्नामेंट कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आगरा की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितनी भी स्कूल्स के बच्चे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके उन बच्चों ने ये दिखाया कि वास्तव में आज हमारा इंडिया क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये फैक्ट है कि इस टाइप की टूर्नामेंट बहुत बड़ी मदद करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आगरा रीजन के स्कूल्स हैं, उनके सारी टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने ये दिखाया कि वास्तव में क्रिकेट का कितना बड़ा जुनून है इंडिया के अंदर। मोहनलाल मीणा ने कहा कि खेलों की नकुल स्तर की प्रतियोगिता ही है। इस दौरान सुमित विभव, मेहुल विभव, समीर विभव, राहुल पालीवाल, राजीव दीक्षित, मनीष तिवारी, प्रणव, विशाल पचौरी आदि मौजूद रहे। मून क्रिकेट प्रीमियर लीग में सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल पीलीपोखर और टीसा के बीच खेले गए मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच टीसा के गेंदबाज वैभव रहे। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज टीसा के रोहित, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल के यशराज रहे। सभी क्रिकेटरों को अमर उजाला ट्रॉफी प्रदान की गई। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामलीला मैदान में श्री राम दरबार में हुई भजन संध्या का शुभारंभ सुप्रसिद्ध भजन गायक नंदू भैया, श्री राम लीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेरवाल ने श्री राम जानकी के स्वरूपों के राज तिलक कर एवं आरती उतार कर किया। इसके बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण भजन के साथ अपने इष्ट का आह्वान करते हुए नंदू भैया ने भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद राम दरबार से लेकर सांसारिक मोहमाया त्यागने तक के भाव अपने स्वरांजलि से अभिव्यक्त किए। नौजवान दोस्तों, इस धरा पर अगर कोई देवी देवता है तो माता पिता से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं होता। अपने अपने माता पिता को, दादा दादी को, बुजुर्गों को नमन करना। नमो नमो माता पिता। डांडिया गरबा की मस्ती में झूम शरद पूर्णिमा उत्सव के रूप में यमुना के तट पर शाम की बंसी भजन को जैसे ही नंदू भैया ने अपने स्वर दिए, भक्त डांडिया और गरबा की मस्ती में झूम उठे। करीब 3000 से अधिक श्याम भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर व्यवस्थाएं श्री राम सेवक परिवार के हेमेंद्र अग्रवाल, यश अग्रवाल, प्रबल गोयल आदि ने संभाली। बड़ी खुशी की बात है कि आज रावण वध के बाद पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी सब लोग अयोध्या आए थे। आज उनका राज्याभिषेक है, भरत मिलाप हो चुका है और इस पुनीत अवसर पर नंदू भाई के आज भजन और कीर्तन होंगे। मैं पूरी रामलीला कमेटी को, राम बारात कमेटी को, जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति का और उनसे जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों का, आगरा की महान जनता का, आगरा के मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि निर्विघ्न होकर ये लगभग 1 मास का आज राज्याभिषेक है। बड़े आनंद का विषय है, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है और आज रामलीला का समापन भी हो रहा है। भगवान राम की बड़ी कृपा से पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। भगवान सभी पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हमारा आगरा
ऐसा ही बना रहे, हमारा देश वैसा ही बना रहे, पूरा विश्व ऐसा ही बना रहे, शांतिपूर्ण ढंग से आनंदपूर्ण सब जिंदगी जिए, यही राम का काम है, यही असली हमारा सनातन परंपरा है। भजन संध्या से पूर्व श्री राम सेवक परिवार समिति द्वारा नंदू भैया का भव्य स्वागत जीवनी मंडी स्थित श्री खाटू श्याम जी मंदिर और मातंगी टावर पर किया गया। दोपहर की आरती पर नंदू जी भैया ने मंदिर में माथा टेका। मातंगी टावर पर श्री श्याम सेवक परिवार समिति द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। आगरा के समस्त श्याम प्रेमियों को शरद पूर्णिमा जो 17 तारीख को है उसकी बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा में महाराज होता है और आज दो चीज लाभ आज हमको, एक तो राज्य तिलक है, आगरा में श्री श्याम सेवक परिवार आज जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है प्रभु राम का राज्याभिषेक, एक तो राज तिलक का कीर्तन है, दूसरा राज तिलक पर हम गरबा करेंगे। ठाकुर जी को, माँ जानकी को, रघुनाथ जी को, जानकीनाथ जी को और जानकी जी को, माँ को, दोनों को हर तरह से गा के नृत्य कर करके भाव नृत्य कर करके हम उन्हें ले जाएंगे। नंदू भैया ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि वे मूलतः नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान के मूल निवासी हैं, किंतु उनकी परवरिश मिथिला दरभंगा बिहार में हुई। न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल तेहरा आगरा में अप्सा स्पोर्ट्स फीस्टा 2024 के अंतर्गत फुटबॉल एवं बास्केटबॉल का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राजेश प्रकाश, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, ने छात्रों के साहस व आत्मविश्वास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ऐसे ही बच्चे हमारे भारत का उज्जवल भविष्य हैं। अप्सा स्पोर्ट्स फीस्टा 2024 के अंतर्गत 12 विद्यालय के छात्रों एवं बास्केटबॉल में 9 विद्यालय की छात्राओं ने प्रतियोगिता में अपना उत्साह दिखाया। बास्केटबॉल में गायत्री पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम आगरा, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा आगरा ने बाजी मारी। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता ने समस्त छात्रों, शिक्षकों व अतिथि गण का आभार प्रकट किया। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा द्वारा आयोजित ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये करीब 1 महीने चलेंगे। इसमें 60 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि इनके गेम्स जो है वो करीब हर स्कूल्स में हो रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी तरह के गेम्स हैं। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, खो खो है, कबड्डी है, वुशु है, क्रॉसबो है, ऑलमोस्ट सभी गेम्स ये लोग करा रहे हैं।